Great morning, dear students. I'm Babita here. Today we will do very interesting topic of grammar, and this is our chapter number 2nd. Name of the chapter is noun. We will start the chapter of noun. Firstly, a question arises. What is noun? Let's know what is noun first. A noun is the name of any person. A noun is the name of any person, place, thing or idea. और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. कोई भी नाम होता है उसको हम नाउन का नाम देते हैं. इट मे बी द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया. दिस ऑल आर considered as naming words and naming words are called noun. नाम किसी का भी हो, वो किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, किसी प्लेस का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है और किसी जगह का भी नाम हो सकता है. नाम किसी का भी हो वो नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, राजू, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड, पुलिस, हैप्पीनेस, लव, एंगर, हाइट, childhood, etc. These all are noun. Some more examples as a sentence. Now, Anu sang a song. Anu sang a song. Anu, that is the name of a person, that is the name of a girl, Anu. And what she sang? A song. That is also noun. My family lives in Dehradun. Family. That is also the name. And lives where? Dehradun. Goa is a nice place. Goa is the name of a particular place. Let's start the kinds of noun or types of noun. There are 5 main types of noun. First one is proper noun, then common noun, then collective noun, after that abstract noun, and then material noun. I'm again telling you: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Let's know more about proper noun. A proper noun is the name of a particular person. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. For example, Agra, Redford, Sonia, Renault, एट्सेट्रा. मीन्स जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर यानी जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसका नाम होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस का होता है या थिंग का होता है. एग्जाम्पल में दिया गया है आगरा. आगरा से पता चला दैट इज़ कॉमन कि भाई हाँ ये नाम है. किसका नाम है? आगरा. दैट इज़ द नेम ऑफ अ सिटी. रेडफोर्ड, सोनिया, रिनॉल्ड, दीज ऑल आर प्रॉपर नेम. सम मोर एग्जाम्पल्स. My name is Dimple Thakur. My name is Dimple Thakur. Name of a person, name of a girl, you can say Dimple Thakur. Delhi is the national capital of India. Delhi, that is the name of the city and that is the capital of India. India is also proper as well as Delhi is also proper. Jaipur is called Pink City. Pink City क्या है? जयपुर है. जयपुर क्या है? Pink City है. Both are proper. My friend teaches in Army Public School. That's the name of the school, Army Public School. I like to eat Dabur honey. Dabur, it's the name of a company. Dabur is the name of a company and honey is regarding that. In this sentence, Dabur is proper noun. Dear students, आपको पता चल गया होगा जो प्रॉपर नाम होता है यानी जो मेन नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है. नाउ कॉमन नाउन. अ नेम ऑफ अ नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन्स, थिंग्स और प्लेस. जो कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमन होता है कि भाई हाँ कॉमन है वो होता है, वो किसी का पर्सन का नाम हो, किसी कोई पर्सन हो, थिंग्स हो या फिर प्लेस हो. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, dog, pen, man, woman,
town, friend, etc. Let's know more. Boys like to play football. लड़के फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. अब ये नहीं पता कौन सी लड़की. ये तो कॉमन सी बात है, बॉयज़ पसंद करते हैं, ये कॉमन बात है. देर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़. पार्क्स यानी बहुत सारे पार्क्स हैं. अब हमें ये नहीं पता कौन सा है, किसी पर्टिकुलर का नाम उन्होंने नहीं लिया, ये कॉमन है, बहुत सारे पार्क हैं वहाँ पे. माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स येस्टरडे. माई फ्रेंड, किसी फ्रेंड का नाम नहीं दिया है, जस्ट ये बोला माई फ्रेंड. बोरोड उधार ली, किसने ली, बुक्स ली, कौन सी बुक ली ये नहीं पता, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन हो गया. पीपल लाइक टू लिव इन सिटी. पीपल कि लोग शहर में रहना पसंद करते हैं. अब ये नहीं पता कौन से लोग. सिटी, ना किसी सिटी का नाम लिया है, बस कॉमन सी बात है, सिटी है, ये नहीं पता कौन सी सिटी है. टीचर प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटर एंड मोटिवेटर इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट. टीचर, सभी टीचर्स की बात है इसमें. टीचर प्ले करता है रोल किसका, गाइड का रोल, मेंटर का, मोटिवेटर का. किसके लिए, स्टूडेंट के लिए रोल प्ले कर रहा है. कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है. ये सभी टीचर्स को इंक्लूड किया गया है. इसमें किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं दिया है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम नहीं दिया है. दैट्स वाई वी विल इंक्लूड इट इन कॉमन नाउन. जहाँ पे जस्ट कॉमन सी बात की जाती है वो कॉमन नाउन होता है. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट, कनक. कनक नाम दिया है, इट्स द नेम ऑफ अ गर्ल, दैट्स वाई दैट इज प्रॉपर. ऑन द अदर हैंड, कनन इज अ गर्ल. कनन तो प्रॉपर हो गया, गर्ल वो लड़की है, लड़की कोई भी हो सकती है भाई, दैट्स वाई दैट इज कॉमन. ऑन द अदर हैंड, स्विफ्ट कार, इट्स द नेम ऑफ अ कार. It's the name of a car, that's why that is proper. And in common there is car. कार ये नहीं पता भाई कौन सी है ये, that's why it's a common. On the other hand, Excel Dio. Excel Dio, इसमें नाम दिया हुआ है Excel Dio. I use Excel Dio के पे ब्रांड बता दिया है कि मैं ये Dio यूज़ करता हूँ. और दूसरी तरफ Dio दिया है, वो सिंपल दे दिया, उसमें कोई ये नहीं बताया कि कौन सी कंपनी है, सिंपली Dio कहा है, इसलिए वो कॉमन में इंक्लूड हुआ है. फिर सूर्या बल्ब, इसमें उस कंपनी का नाम दिया है बल्ब की कि कौन सी कंपनी है, सूर्या की कंपनी है, और इसमें जस्ट बल्ब दिया है, दैट्स वाई इट्स कॉमन. देन रामायण, रामायण इज द नेम ऑफ एपिक, दैट्स वाई दैट इज प्रॉपर. एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अ बुक, और ये नहीं नाम दिया कौन सी बुक है, दैट्स वाई वी विल इंक्लूड दिस बुक इन कॉमन. मिकी हट, मिकी की हट, और ये खाली हट, यानी इसमें प्रॉपर नाम दिया है कि भाई मिक्की की है, दैट्स वाई दैट इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर नाउन. एंड दैट इज जस्ट हट, एंड दैट विल इंक्लूड इन कॉमन नाउन. डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक you will understand very well different between two. Now we will do collective noun. Firstly, I would like to define what is collective noun. A name is given to a group of people, animals, things, or the same kind regarded as a single unit is called a collective noun. Example, class, crowd, team, etc. Means dear student, it's the collection of anything. ये नाउन आपको बताया है क्या है, उसका कलेक्शन की बात यहाँ पर हुई है. आफ्टर लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स you will definitely come to know what is this. A group of dancers, group of dancers क्या कहलाते हैं, ट्रूफ. एंड सेंटेंसेस, a troop from Africa came to India, कि भाई डांसर्स का एक ग्रुप भारत में आया. कहाँ से आया, अफ्रीका से आया. इसमें ट्रूफ जो यूज़ किया गया है ये कलेक्टिव नाउन है. और दूसरी तरफ दिया गया है अ ग्रुप ऑफ काउज, बफेलोज, हर्ड. वो क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ काउज एंड बफेलोज, हर्ड कहलाता है वो. माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड, कि भाई मेरा जो फ्रेंड है वो हर्ड रखता है अपने फील्ड्स में, यानी ग्रुप ऑफ काउज एंड बफेलोज. अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स कॉल्ड जोड़.
दिस चोर sang a patriotic song, यानी इस ग्रुप ने, सिंगर्स के इस ग्रुप ने एक पेट्रोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति सॉन्ग गाया। अ ग्रुप ऑफ कीज, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कीज को बंच, और वो भी होता है क्योंकि बहुत सारी होती हैं उसमें कीज, कोई एक नहीं होती, उनका कलेक्शन होता है। आई लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज येस्टरडे। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है बुके। वी गिफ्टेड अ बुके टू आवर न्यू मैनेजर। नाउ वी विल डू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? A name is given to a quality, state, feeling or emotion is called an abstract noun. For example, courage. Courage क्या होता है? वीरता। Childhood यानी बचपन। Anger यानी गुस्सा। Excellence यानी शानदार। Privacy यानी प्राइवेसी। प्राइवेसी होती है कि हमें प्राइवेसी चाहिए, मीन्स एकांत, वी कैन से, एटसेट्रा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सीन और टच। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर, कि भाई जो इसकी लेंथ है रोप की वो 5 मीटर हो सकती है। लेंथ यानी उसका ये नहीं पता कि भाई कितनी लेंथ। हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड। हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड, यानी नॉलेज, उसका ज्ञान, विजडम, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स उसको टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं हम नॉलेज को। विजडम कैन नॉट बी बोट, यानी जो विद्वता है यानी ज्ञान है उसे खरीदा नहीं जा सकता। ज्ञान, वी जस्ट कैन फील दैट ही इज़ अ विजडम, हिज विजडम इज ग्रेट, वी कैन से। एंड नाउ डू मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल, यानी कोई चीज़ होती है, कोई मटेरियल होता है, वो किस चीज़ से बना होता है उसको मटेरियल बोलते हैं। एंड दैट इज़ मटेरियल नाउन, इससे रिलेटेड चीज़ से, यानी फॉर एग्जांपल कोल, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड एट्सेट्रा। जो मटेरियल होता है वो 2 तरह का होता है बेटा। जैसा कि मैंने बताया कि मटेरियल क्या होता है, कोई चीज़ होती है, पर्टिकुलर चीज़ होती है, वो किस चीज़ की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, वो हम मटेरियल नाउन में कलेक्ट करती हैं। और जो हमारा मटेरियल नाउन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल में हम काउंट, जैसे बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, पेन्स को काउंट कर सकते हैं, ग्लास को कर सकते हैं, टॉफीज़ को कर सकते हैं। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो होता है मिल्क, सम मिल्क वी कैन से, शुगर, टी, ऑयल। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन्स आर, देयर आर 3 ग्लासेस, इसको हम काउंट कर सकते हैं। 9 बॉटल्स आर kept on the tray, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। I saw 3 camels on the desert, मैंने 3 camels को देखा डेजर्ट में, इसको हम काउंट कर सकते हैं। रीना hanged 4 pictures on the wall, 4 पिक्चर्स लटकाई हुई थी है दीवार पर, उसको हम काउंट कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज सम मिल्क इन द जग, कि भाई जग में कुछ मिल्क है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल sorry, that is called uncountable noun. That is different here. Dear students, for today it's enough. Thank you and have a nice day. Bye bye.